and Shir Bhavani. He is then found by his brother disciple immersed in meditation. On Swami Brahmananda's instruction, the disciple touched Swamiji's feet and asked a few questions. By this, Swamiji's attention was a little diverted, and he said that visiting Amarnath, Lord Shiva was sitting on his head and refused to come down. The disciple was amazed hearing that. अच्छा, how many people have you? आप लोगों में से कितने अमरनाथ गए हैं? हम लोग गए हैं। और कितने गए हैं? अमरनाथ नहीं गए, लेकिन क्षीर भवानी गए हैं। अच्छा, वो आप लोग के सिर के ऊपर भगवान शिव जी बैठे कि नहीं बैठे? नहीं बैठे। नहीं बैठे, हाँ। वो तो ठाकुर जी स्वामी जी जैसे लोग हैं, वो अमरनाथ के भाव में विभोर हो गए हैं। उसका वर्णन बहुत सुंदर है, वो मैंने पढ़ा भी है, और इसके बाद में जब ये पढ़ा था, उसके बाद मैंने फिर से पढ़ा था, जब शुरू में किया था। चलिए आगे चलिए। अच्छा, अच्छा, he further added that, oh no, seeing the dilapidated condition of Shir Bhavani, an idea of its protection had come to his mind, when suddenly he heard a divine voice saying, "Shall you protect me or shall I protect you?" After that, Swamiji abandoned all ideas of building a mutt, etc. Answering the disciples' questions, Swamiji said, divine voices are actually heard. He further added that a disembodied spirit may come, which by prayer or shraddha might be appeased. Now, place at Nilambar Babu's garden, 1898 November. Swamiji was composing a Chandala Pratihatarayo and Om Rim Ritam, and conversed with the disciple in fluent and melodious Sanskrit for 2 hours, and asked him to check whether any grammatical mistake was present. At this, the disciple said, "Sir, these are not flips, but license of genius." Swamiji said that he wrote what is Hinduism, but that there were some complaints about it, that the language was very stiff Bengali. He added that the language, thought, and even the modes of sannyasing become monotonous, lifeless, and inconvenient after a certain period of time. So it should be recast in new mode. Everywhere an infusion of vitality is required to combat the terrible struggle for existence ahead of the people of this land. He instructed us to live in a better way so that others will follow us and new ideas will awaken. He said, true sons of Sri Ramakrishna will manifest practical sides of the religious ideas with one-pointed devotion and without caring for the prattles. One must retain great strength in mind and words. Now, Swamiji said, through concentration of mind, everything can be done. Know him or Atman. Maya will disappear and everything will be easily mastered. The disciple asked many questions and had arguments on how avatars, after getting Nirvikalpa Samadhi, could come down to the normal plane. Finally, Swamiji explained
to him that Maya, a mind, which is darkness or illusion, works by the light of the Atman. When it is broken, then merges in the unbroken ocean of intelligence. This Atman is Brahman. At night, after having a wonderful dream, the disciple asked for permission to worship Swamiji. On that, Swami Premanand ji said that Swamiji and Sri Ramakrishna are the same. Swamiji gave a biscuit made of egg to the Orthodox disciple, which he gladly accepted. On which Swamiji said that he was being blessed with the removal of egotism forever. Swamiji praised foreign country people for their endeavors and use of their intelligence to become big entrepreneurs. He blamed his own countrymen, saying that they have no faith, no Shraddha on themselves. Citing many examples and many options to the disciple, he wanted to bring new changes to our society, infusing strength among us. Swamiji wanted the higher classes of our society to try to lift the lower classes by sympathizing with them. This life is as unstable as the water on the lotus leaf. He wanted us to sacrifice our lives for the good of others and work till the goal is reached. Pranam Maharaj. ओके, तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। पता नहीं आप लोगों ने हाउ मेनी पीपल हैव रेड इट, पढ़ा कि नहीं सबने? हाँ जी, पढ़ा है। सबने पढ़ा है। हाँ, सबने पढ़ा है, पढ़ा है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ महाराज, दिस इज वेरी गुड और केयरफुली वो मस्ट स्टडी। मैंने भी इसको पढ़ा एंड बिकॉज मेरे को तो पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चंस आते हैं, so I had to get ready, I have to read it and connect it. Now shall we start questions? स्वामी जी, मैंने तो किसी और के साथ पढ़ के सुनाया। अच्छा, ठीक है। तो क्या you will be going away earlier or what? No, nothing like that. Okay. No. महाराज जी, हम लोग जब ये पढ़ते हैं तो एक ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है व्हाट इज कंटेम्परेरीली एप्लीकेबल एंड व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो क्लासेस आपके साथ हो रही है दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर अस टू डिसाइड दैट। स्वामी जी ने ये लिखा है कि मोर 125 years earlier, 125 साल पहले की बात है। हाँ, तो उस कुछ समय ऐसी की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। हाँ हाँ, और इस दृष्टि से ये परिवर्तित जरूर बहुत हो गया। हाँ, तो वो इतना लोमार कैसे कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है मार्शल के बारे में, वो विल डिस्कस करेंगे। जी महाराज। चलो कुंडू, कुंडू है कि नहीं कुंडू? यस महाराज। चलो महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन पेज 132 Swamiji says, I underwent great religious austerities at Amarnath. Swamiji was an Advaitavadi. So was Sri Shankaracharya. But both of them followed rituals with equal devotion. If the four paths of yoga are independent of each other, why don't you see it reflected in the life of any great saint? ना ऐसा है कि ये your shirt you are wearing and the banyan which you wear, they are independent of each other, isn't it? Yes. उसके ऊपर कोट भी इंडिपेंडेंटली आ सकता है।
हाँ जी, और तीनों एक साथ भी पहने जा सकते हैं। हाँ, Yoga is an independent, but they can be practiced together. There is absolutely no objection. जी। तो ये विचार का मार्ग एक है, और जो विचार करने वाला है वो बैठकर ध्यान भी कर सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं महाराज, ऑब्जेक्शन मेरा क्यूरियोसिटी था कि ऐसे कोई हुआ है जो मतलब ऐसे एमलगमेशन नहीं किया है और एक ही मार्ग में जाके सिद्धि प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, मैं कह नहीं सकता तुमको, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा ओके। हाँ, बहुत सारे हैं, इसमें कुछ नहीं। अब पंचदशीकार जो है, क्या नाम, विद्यारण्य, मोस्ट प्रॉब्ली वो विद्यारण्य। बिल्कुल तत्वज्ञानी थे। अच्छा महाराज, सेकंड महाराज पर स्वामी जी ने कहा है कि 4 योगों का समन्वय सबको करना है। यही तो बात हो रही है, हम भी तो यही तो कह रहे हाँ, नहीं, बात तो ही है, सही बात है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि everyone finally does the same, but then we generally attribute one path to one person. So उसी नो के नो, लिए मेरा ऐसा नहीं है, सवाल। ऐसा नहीं। अभी पूछा जाए, स्वामी विवेकानंद तो कहा ना, डू इट बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल, और बाय वन और मोर और ऑल एंड बी फ्री, है ना? Yes, yes, स्वामी जी yes. ने इसलिए कहा, 4 योग बता दिए उन्होंने, उसके बाद में कहा सबको एक से, समन्वय। 2 से करो, सबसे करो, एक साथ करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। Yes. तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन सो फार एज साधना is। अच्छा। महाराज तुकाराम जी तो सिर्फ भक्ति के पात पे ही ये हाँ, अचीव ठीक द है। अल्टीमेट और शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांती, लेकिन हाँ, ऐसे हाँ। शंकराचार्य जैसे भक्त भी कहाँ भक्त भी मिलेंगे? बहुत थे। हाँ, तो फिर सारे स्तोत्र उन्होंने लिखा है। हाँ, तो इमोशन का भाव है और ज्ञान का भाव है, दोनों को डेवलप करो। अच्छा महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 135. There are irrefutable arguments to prove that the Shraddha ceremony appeases the departed beings. Now, traditionally, the male child performs Shraddha. Now that many of us have only girl child, how beneficial will be this ceremony to our departed souls? आई कांट आंसर दिस। महाराज, यानी वो गर्ल भी कर सकती है कि नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है महाराज, हम लोग तो किए थे, मैंने किया था अपने पिताजी का श्राद्ध। तो हो गया, तो देखो आंसर हो गया। हाँ हाँ। और और महाराज, जैनिज्म ने तो ये श्राद्ध सेरेमनी को हटा ही दिया बिल्कुल। that is what हाँ। हाँ, मेरा सवाल है इस कि चीज में था कि करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइक से आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ए गर्ल सिंगल चाइल्ड, नाउ शी इज मैरिड, तो शी यू नो आफ्टर 3 days द पुरोहित कम्स एंड सेज आपका तो 3 दिन में करना है बिकॉज आपका गोत्रांतर हो गया। देन सेकेंड आफ्टर 15 days सेज कि आप तो करना ही है क्योंकि 15 दिन के बाद ही वो पंचदान और 10 दान जो भी षोडश दान होता है तो वो कौन करेगा? तो देन ही सेड कि मैंने तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बोला फिर आपकी जो है कोई रिलेशन को बोलिए, बट इट शुड बी अ मेल बॉडी, बिकॉज अगर पुत्र की जो ये है मतलब डेरिवेटिव मीनिंग है, दैट इज दैट ही रिलीव्स यू फ्रॉम दैट नरक व्हिच इज नेम्ड एज पुण्य। तो उनसे त्रायन करते हैं बोल के उसको, वो त्राण करते हैं बोल के उसको पुत्र बोलते हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि इसमें कोई स्क्रिप्चरल इंजंक्शन है या स्क्रिप्चरल सपोर्ट है कि नहीं? जबरदस्ती देखो, कर ऐसा दिया है कोई कि बड़ी हमारे- बात नहीं है। ये मैं जानता, क्रियाकांड में जो भी होगा, सैकड़ों क्रियाकांड है, उसके हम नहीं जानते। हाँ हम तो कभी पढ़ते भी नहीं, हम तो वेदांत पढ़ते। महाराज जी, ये सवाल मैंने एक प्रीस्ट से किया था और वो कहते थे कि मान लो कोई कर नहीं सकता या कर नहीं पा रहा, सिर्फ बेटी है, कुछ है, सो देयर आर मेनी रिलेटिव्स आल्सो हु डू इट, उनके बेटे करते हैं, और उनके जो विधि होते हैं उसमें एक ऐसा होता है जहाँ पे वो पिंडदान करते हैं और वो जिनका कोई नहीं है या जहाँ कोई कर नहीं पा रहा उनके नाम से किया जाता है। सो somebody is always doing it. ऐसा है, कुछ नहीं, वो पंडे लोग उसको समझा देते हैं, मंत्र बना दिया है, हाँ और बस दूसरा वही व्यक्ति है। कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा
कि जैनिज्म में तो ये बिल्कुल नहीं है। करेक्ट, अब उसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों किया? हटा दिया। आइडिया ये है कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनके प्रति हमारा आभार प्रकट करना चाहिए, और श्रद्धा। ग्रेटिट्यूड डिपेंडेंट एंसेस्टर, सोशल फंक्शन, नो स्पिरिचुअल वैल्यू। याद रखिए, इसका स्पिरिचुअल वैल्यू कितनी है, सोशल फंक्शन। But here Swami ji is telling that इसका spiritual value भी है because it is appeasing the departed beings. ये तो नहीं social वो function कहा नहीं स्वामी बोल जी ने रहा ऐसा है। लिखा है कि श्रद्धा spiritual इज, value, श्रद्धा इज। ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ, ये बोल रहे हैं ना, पेज 135 में श्राद्ध सेरेमनी का बात हो रहा है, जब बोलो। हाँ, इसमें ये बोल रहा है देयर आर irrefutable arguments to prove that the श्राद्ध सेरेमनी appeases the departed beings. हाँ, तो ये तो फिर रिचुअल को स्वामी जी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें तो सोशल सेरेमनी नहीं बोला। हाँ। नहीं, लेकिन वो स्पिरिचुअल क्यों बोल रहे हो तुमको? नहीं, जैसे डिपार्टेड हम लोग सोल को अगर अपीज कर रहे हैं तो उसको तो हमें रिलीजियस ही वो तो मानना चाहिए ना। सोशल फंक्शन हुआ ना, रिलीजन। हाँ, तो सोशल फंक्शन हुआ। It is religious but not spiritual. रिलीजियस। रिलीजियस हुआ, स्पिरिचुअल नहीं है। नहीं, और जैसा मैंने कहा है कि जैन धर्म में तो उठा ही दिया हम लोग, वो जो क्या होता है उनका, हम लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का क्या नरक वरक होगा? जैन धर्म मानता ही नहीं उसको। जो नहीं मानेगा नरक, उसको नहीं होता नरक, और स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग भी नहीं होता। महाराज जी, जैसे फॉरेनर है, मुसलमान है, हाँ, तो जो उनकी प्रथा होगी उसका होगा। क्रिश्चियंस हैं तो वो भी उनके यहाँ भी ये है कि पिंडदान वगैरह कुछ नहीं तो है, कुछ भी नहीं है, फिर क्यों रखते हो उसका इतना महत्व क्यों दे रहे हो? ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन, दैट्स ऑल। महाराज जी, गायत्री समाज वालों ने लड़कियों को पूरा ये रिचुअल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि श्राद्ध कहाँ पे? सेरेमनी कैसे करेंगे, और वो लेडीज से करवाते हैं। कहाँ पे? गायत्री समाज वालों ने हरिद्वार में शुरू अच्छा कर ठीक दिया है, मैं वही तो बोल रहा हूँ हाँ, कि इसको कि तो लेडीज इतना क्यों सब कर इम्पोर्टेंट सकती है है? लेडीज। हाँ, नहीं उसको छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज हाँ। 138। हम्म, Here वो सब छोड़ो। हाँ, he is telling through the fear of this. One second. fear is that Through the fear of this, fire burns, the sun heats. Through the fear, Indra and Vayu are carrying on their functions, and death stalks upon this earth. Hmm. Now, in this context of natural world, fear seems to be a good thing, or else the world will vanish. Swami ji खुद बोल रहे हैं, there will be chaos in place of order. So, is fear always negative? Because in everywhere else Swamiji is telling that be fearless. But इसमें बोल रहा है fear नहीं रहता है तो order नहीं रहता है. हम्म, तो is in this place, do we take it as a positive thing, this fear? A very interesting way of presenting the positive aspect of fear, isn't it? फियर करो तो फियर करने से तुम मॉरल हो गए, आध्यात्मिक हो गए। जने पाप का भय करो तो तुम पवित्र हो गए, पुण्यात्मा हो गए। इट इज अ वे ऑफ टेलिंग, इट इज अ पॉजिटिव वे। लेकिन दैट डज नॉट मीन भयात ऐसा अग्निस्तपति, भयात तपति सूर्य इत्यादि बोल रहे हैं, लेकिन उससे इसका मतलब ये नहीं कि हम मृत्यु से भय करें। इमोरलिटी से भय करो, पाप से भय करो, क्योंकि तुमको सफरिंग होगी उससे। लेकिन अपना आत्मा अजर अमर है, मृत्यु से भय मत करो, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो, तो उसके बाद भय की आवश्यकता ही नहीं है। आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे तो पाप वगैरह कुछ नहीं होगा, हम बुरा काम करेंगे ही नहीं। Okay. तो ये एक पॉजिटिव निगेटिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग ए पॉजिटिव आइडिया। Yes. हाँ। Now, महाराज page, मुझे ये कठोपनिषद का जो मंत्र है, मुझे लगता है ये नहीं क्या कट गया?
इमेजिनेशन भी हो सकता है ना, मतलब इस पोएट्री का इमेजिनेशन हो रहा है, मतलब पोएट्री एक्चुअली तो है, नहीं है ये, मतलब सूर्य इट इज भाई ए से नहीं पोएट्री, तप रहे। हाँ इट इज पोएट्री है, पोएट्री, मतलब इमेजिनेशन टाइप। इट इज पोएट्री, पोएट्री नॉट इमेजिन, पोएट्री। हाँ नहीं, इट इज, कठोपनिषद आई पूरा ही आई तो एम टेलिंग इट, इट कैन बी इमेजिनेशन आल्सो। नो कठोपनिषद तो सारा कठोपनिषद तो पोएट्री है। हाँ पर ये हाँ, जो पैरा है वो इमेजिनेशन हो सकता है ना, नहीं सूर्य नहीं, भय से पोएट्री, तप रहा है, पोएट्री, चंद्र। पोएट्री अच्छा यानी ये बताने के लिए कि भगवान जो है वो सबका नियंत्रण है, सारा जगत उनसे चल रहा है, उनके भय से चल रहा है, तो ये तो पोएट्री बनाई है भाई। भयात यस्य जगत का अग्निस्तपति, नियंत्रण। भयात तपस्वी सूर्य, भयात इंद्रश्च विष्णुश्च, मृत्युर्धावति पंचम, ये पंच तत्व जो है वो भगवान पंचमा। चला रहे हैं, ये बताएगा। वो पोएट्री, प्योर पोएट्री, भाई की बात ही नहीं है यहाँ। Yes, Maharaj. Now, next question, Maharaj. Page 140. Page 140, it says, by knowing whom everything else is known. Now, I can grasp the meaning of this in the context of spiritual world, but how is it possible in the material world? Is it also a fact in the material world? Swami ji had to read. ऐसा उसके तो is there any commentary which says that by knowing it we also know the atoms, we also know the table, we also know the stool? ऐसा तो कभी कहा नहीं है। हाँ, it is only in the spiritual ये context खाली that it is said. स्पिरिचुअल है। yes, man. Then it is understood. Maharaj, Then- we can say that what is knowable or should be known is the Atman alone. So That's all. anything other than that it should be ignored when it says that. ना वो तो कोई बात ही नहीं है। That's what I mean. And last question, Maharaj, page 147. अच्छा, इस संदर्भ में एक बात बता रहे हैं, सुनो। हाँ, वो ये नोइंग के बारे में पातंजल योग सूत्र में है, एक सिद्धि है, वो व्यक्ति सर्वज्ञ होता था, तो ज्ञान ऐसा प्राप्त करता है, तो क्या होता है उसमें, ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि अगर वो चाहे तो उससे पूछा जाए टेबल के बारे में बताओ, तो वो उसमें समाधि में चला जाएगा, धारणा ध्यान समाधि जो है वो संयम करेगा उसमें, और जो व्यक्ति उसको वस्तु उसको जानना चाहता है उसके बारे में जान जाए। यानी उसके सामने एक स्टूल रखा हुआ है और स्टूल की बनावट, स्टूल कैसे आया, स्टूल की लकड़ी कैसी है, अगर जानना है तो वो संयम करेगा, कंसंट्रेशन करेगा और वो उसको पता। दैट सॉर्ट ऑफ ये सिद्धि है एक सर्वज्ञत्व की, ये पतंजल योग सूत्र में कहा। ठीक है। ओके महाराज जी यहाँ आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड, इवन माउंटेन्स कैन बी क्रश्ड टू एटम्स। वही तो यह है, कंसंट्रेशन के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, ये पतंजल योग सूत्र में भी कहा है, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त। These are all siddhis. Yes. Then last question, Maharaj, page 147. He is telling, throw your religious observances overboard for the present. It seems Swamiji wants us to achieve material prosperity first. When we see the rush for materialism in the society around today, should we feel happy that we are going in the right direction? अरे वो how do you mean, how are you going to decide which is the right direction? Now what is required is balance of both spiritual and material needs. And that is so many modern, see, right direction you are talking, balance होना चाहिए, and so many religious organizations have started in India, isn't it? Yes, man. So how can you say that we are not going in the right direction? Material expansion has taken place everywhere. इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, सब प्रॉस्पेरिटी आ गई है, गरीबी बहुत दूर हो गई है, खत्म हो गई है।
ले, और उसके साथ में देखो ना कितनी थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द कंट्री है कि नहीं है? ठीक महाराज। वो तो अपने आप हो गई है। प्रणाम महाराज, थैंक यू महाराज। चलो इतु घोष। Pranam Maharaj. My first question is, this is regarding the text, but not from exactly from the text. When one is advanced in meditation, but yet having some ego, what and how does one feel in that meditating state besides some visions? What do you mean? I Means don't sometimes understand. when you are advanced, some visions are there, means some sound or something, but I say, if you are advanced and you have some, because ego we have to have, so what is the feeling? You see, what do you mean by advancing in spirit meditation? Patanjali Yoga Sutra says there are 3 types of meditation advancement: dharana, dhyana, samadhi. Yes. Be very clear here about. You are talking of advancing in meditation, but we must be very clear about it. Oh. Dharana means So we should maybe be able more to than advanced Wait. dharana. wait. Means- Listen, let me explain. Do you understand? You are not understand. Yes. According to Yoga Sutra, commentary, etc., for 12 seconds, if you are able to meditate, it is dharana. Then 12 into 12 seconds means 2.24 seconds. 2 minutes 24 seconds, if you are able to meditate, that is dhyana. And do you know, most of us are not able to meditate even for one particular one for 2 minutes or 3 minutes. And into 12, then around 30 minutes, if you can think of one object, then it becomes samadhi. So how rare it is. And at that time, the object of meditation must remain for such a long time. Remember. Now you ask your question. You must understand this and then ask question. Yes. Now my question is, suppose dharana is already, somebody has accomplished dharana, and meditating means to think about, just not to see, isn't it? Thinking about something. Is it that? Oh, no. Oh, One particular object must constantly remain in the mind. just that. Even It's a physical aspect like a glass constantly remaining. That physical dharana hui. Then uske baad mein sukshma dharana. Oh, listen. Then an idea about ahimsa. So only one idea about ahimsa must remain. Without satya, idea of satya also must not come. That becomes for 2 minutes. If you do, then it becomes dhyana. And if you do it for 30 minutes, then you become one with satya. That is, Thakur became one with satya. That becomes samadhi. So it is not so easy as you are talking. No, it is not that Dhyan easy. itself is not so easy. Most of us, we don't even are able to do dhyana. Yes. Now, Thakur, you say, what do you mean by one is advanced in dhyana? अरे बाबा पहले 2 मिनट 3 मिनट ध्यान तो करने दो, उसके बाद एडवांस की बात आती है। हाँ, नहीं, जो ठाकुर ने बोला है ना कथामृतम में कि ভাষা করলে চলবে না, ডুব দাও। हाँ, तो এটাই তো বলছি, আমি তো বলছি, আমরা তো ये भी तो कह रहा हूँ, ये 2 मिनट में नहीं होगा, उसको करीब 10 मिनट 15 मिनट एक बात एक चीज में लगे रहो, वो तो नहीं होता ना, इसलिए हम डूबते नहीं हैं। जी हाँ जी, हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट समझ ठीक में हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया। फर्स्ट का आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है महाराज, मेरे को लगता है ईतू पूछ रही है वो जो
स्वामी जी का ये है ना गाना, मतलब जो अहंकार लास्ट में जो विलय हो जाता है उसके बारे में पूछ रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं उस संदर्भ में ना ही ज्योति ना ही सूर्य, उसमें लास्ट में है अहंकार, लास्ट में विलय होता। ना, इट माइट बी और ना वो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं स्वामी जी कह रहे हैं मेडिटेशन जो there, है वो ईगो के ऑब्जेक्ट ऑफ ईगो के फीलिंग पे भी मेडिटेशन किया जा सकता है, इस प्रकार की बात। अच्छा। हाँ। So what is your question again? Restate your question now. When one is advanced in meditation, but yet having some ego, what and how does one feel in that meditating state besides some visions? Let it be whatever it is. What does it matter to you? Okay. Okay. There are a lot of descriptions are there. Vibhuti Pad is there. Patanjali Yoga Sutra. So many visions are there. Okay. So as long as ego is there, visions will be there. The merging of ego is the last step. Yes. Okay. And second question is, Swamiji and Thakur both preferred some business as profession for their devotees. But if someone makes more profit and more engaged with that, is it not an obstacle on the spiritual path? Yes. वो ऐसा है कि स्वामी जी ने इसलिए कहा था कि उस समय इंडिया में गरीबी थी और कुछ काम नहीं करते थे. You are sitting without doing anything. You have got tamoguna. To give up tamoguna, you must do rajogun. But Okay. rajogun also will become an obstacle. याद रखो. Obstacle. हाँ, ठीक है. And you have asked the questions is all right, but you have not given any references, etc. Page number, etc. You did not. नहीं, एक्चुअली हम पेज नंबर से नहीं बोले, ओवरऑल हमने ये सोचा. Okay, okay, that's all right. हाँ, हाँ. प्रणाम महाराज. हो गया. महाराज, शुड आई रीड दैट? जो गाना है उसका मीनिंग समझना बहुत ही डिफिकल्ट है. क्या है, कौन सा गाना? अरे तुम्हारा ये कौन बंद हो जाता है भगवान? वो जो तुम्हारा माइक जो है वो कट हो जाता है बार बार. महाराज, ना ही सूर्यो ना ही ज्योति, ना ही सूर्यो ना ही ज्योति, ना ही शशांक सुंदर. ये गाना को जरा आपको बताऊं कि भाई ये मीनिंग समझना बहुत डिफिकल्ट है. अरे ये अद्वैत वेदांत का है, उच्चतम अवस्था का अनुभूति का वर्णन है यहाँ. जहाँ पे कुछ नहीं रहता, जगत नहीं रहता, सब कुछ विलीन हो जाता है. वहाँ पे अहम अहम रहता है ना. बाद में कहते हैं ना अहम अहम. हाँ, अहम अहम. हाँ, अहम अहम यानी वो केवल एक ओम ओम जैसे कहो कुछ एक रहता है और सब बाकी विलीन हो जाता है. वही बोल रही वो. No, don't worry about those. Very too high. अच्छा, ओके, ठीक. हाँ, हाई. सुबीर मजूमदार. हाँ, प्रणाम महाराज जी. तो महाराज, पहला सवाल है, स्वामी जी heard divine voices at खीर भवानी टेम्पल. तो मेरा एक सिंपल सवाल है, what is this divine voice? Very difficult to explain. यानी ये तो ये है कि divine voices are not even mentioned in the विभूति पाद of yoga. अच्छा. वहाँ पे भी डिवाइन में इनका योग है, इस प्रकार का मेंशन नहीं. अब भक्ति शास्त्र में होता होगा, ये हमको नहीं मालूम. आई कैन नॉट टेल. क्योंकि वहां पे जो डिसाइपल है वो जवाब देते हैं कि डिवाइन वॉइसेस तो आपने एक जगह पहले बोला था कि अपना अंतरात्मा का ही आवाज है. तो स्वामी जी ने कुछ और जवाब दिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. तो क्या कहना चाह रहे थे स्वामी जी उस वक्त, मेरे को समझ में नहीं आया अबाउट दिस डिवाइन वॉइस. अब ये भी है, सच पूछा जाए तो फिर यहाँ पे भी यही है कि जो भी हमारे भीतर की डीप सबकॉन्शियस फीलिंग्स है वो अपेयर होती हैं. जैसे ठाकुर स्वामी जी ने ये सुना कि क्या तू मेरी रक्षा करेगा या मैं तेरी रक्षा करूँ, ये है ना. तो ये भी बात जो है ये डीप सबकॉन्शियस से भी तो आ सकती है ना. जी महाराज. जब तक ये अहंकार रहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा,
तो उसके बाद में डीप सबकॉन्शियस में जो आत्मा है उससे ये प्रश्न हो जाएगा, आत्मा अजर अमर है, न वो कुछ करती है न करता है, और ये जो है एक प्रकार से विजन के रूप में या वॉइस के रूप में हवा है, तू करेगा क्या मैं करूँ? he would have तो ये probably जो आइडियाज है कि भगवान सब कर रहा है, ये डीप सबकॉन्शियस में है, ये मैनिफेस्ट होता है विजन के रूप में या वॉइस के रूप में। तो he must have dived so deep into the consciousness or वो subconscious. समाधि में ऐसी गहरी समाधि में आए कि ये विजन तब almost when he became one with Atman, तो ये अंतरात्मा से आवाज आई होगी. That is possible, yes, Maharaj. My second question, Maharaj, in section 7, first paragraph, Swamiji says, if one does the work of teaching boys for a long time, one gets blunt in intellect. One's intelligence is not manifested. If one stays among a crowd of boys day and night, gradually one gets obtuse. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इस उम्र, हाँ, when you are talking in terms of spiritual advancement, अच्छा, तो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर मैं रात दिन मेडिकल वर्क करूं जी और स्पिरिचुअल थिंकिंग बिल्कुल नहीं करूं, 15-20 बेड्स हैं, 3 आउटडोर हैं, और उसके बाद मैं उसको पढ़ रहा हूँ, प्रत्येक केस को स्टडी कर रहा हूँ जी, रिसर्च कर रहा हूँ, पेपर लिख रहा हूँ, ये अपने आप में तो इनफ है ना। तो यू रिमेन एट पर्टिकुलर लेवल, यू डोंट गो हायर देन दैट। हाँ, वो मूड दूसरा रहता है। हाँ, उसी प्रकार से जिस लेवल पे आप रहेंगे, अगर कंटिन्यूअसली बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का ही दिमाग हो जाएगा, उसके आगे ऊपर नहीं जाओ। ओके, क्योंकि मैं आपकी बात में बिल्कुल समझ गया। मेरा थिंकिंग कुछ और हो रहा था उस टाइम पे, जो आपने क्लियर कर दिया। मेरी थिंकिंग ये हो रही थी कि जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो उनकी एनर्जी, क्योंकि हमारी एक ऐसी उम्र है, नाउ व्हेन वी आर विद चिल्ड्रन, वी गेट इम्पार्टेड द एनर्जी फ्रॉम द चिल्ड्रन, जो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि वी कैन इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। ऐसा है कि यू हैव टू नो दैट स्पिरिचुअली आप कहाँ पे हो, और इसलिए बार बार कहते हैं कि बीच बीच में एकांत में जाना चाहिए। जिस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में, अब जिस सोशल एटमॉस्फेयर में आप हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर से हैं, उससे ऊपर के एकांत में जाना, किसी आश्रम में जाना और सबसे अलग होकर साधना करना इम्पोर्टेंट है। तब पता चलेगा कि हम कहाँ पे अटके हुए हैं और उसके आगे कहाँ जाना। अच्छा महाराज, ये तो हमारी अवस्था हुई। अब मैं ठाकुर जी की अवस्था में आता हूँ। वो यंग बच्चों के साथ मिलना जुलना चाहते थे, उनकी बात अलग है, क्योंकि वो तो अलग ही अवतार पुरुष थे, और वो बालकों के साथ भी मिलना चाहते थे, छोटे बच्चों के साथ भी मिलना चाहते थे, वो बालकवत हो जाते थे। तो वो उसको थोड़ा सा समझाइएगा अलग से। ये बालक होना, ये जो है परमहंस की स्थिति है, बालवत उन्मत्त बालवत की स्थिति, यही मेरे दिमाग में आया था। ये जो परमहंस की स्थिति है, वो अंदर जो है वो पूर्ण रूप से परमहंसत्व में, भगवान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। बाहर कैसा व्यवहार है उसके ऊपर। और बाहर दूसरे लोगों से मिल रहे हैं तो वो तो संसार में बंद है, काम क्रोध लोग में पड़े हुए हैं। तो चलो भाई बच्चों के साथ जरा मिले, वो फ्री हैं, बच्चों की तरह रह लेते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। दैट इज द आइडिया। और महाराज, बच्चों में एक सरलता होती है जो बड़ों में नहीं होती है। क्या ये भी एक एस्पिरेंट ले सकता है बच्चों से? वो होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, तो है ना। हाँ, बच्चों की सरलता महाराज, और एक सरल भी होते बच्चे। उसके बाद बच्चों में कई चीजें ऐसी हैं जो अभी विकसित नहीं हुई, काम क्रोध नहीं होते हैं उसके अंदर। उससे किसी सरल होते हैं वो। ठाकुर खुद बोलता है ना, झगड़ा किया और नेक्स्ट मोमेंट जोड़ी कर दिया, दोस्ती भी भूल जाते हैं। जिस दिन एस्पिरेंट सरल हो जाएगा उस दिन वो काफी आगे बढ़ सकता है। स्वामी अद्भुतानंद जी कितना सरल थे। दैट्स ऑल महाराज, दैट्स ऑल महाराज। प्रणाम महाराज। शिवानी महाराज जी, एक मेरा यहाँ पे सवाल है। महाराज जी, ये बच्चों जो होते हैं तीनों गुण का पार होते हैं, सत्य रजतम, तीनों गुण का पार होते हैं। आप लोग कमेंट करने करोगे तो ये चलेगा नहीं, एक क्वेश्चन हुआ कि आंसर इज बन। हाँ महाराज जी, मेरा सवाल है, एक
बोलो। महाराज जी, हाँ मेरा सवाल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत दिनों तक मास्टरी करने से बुद्धि बिगड़ जाती है, ज्ञान का विकास नहीं होता, दिन रात लड़कों के बीच रहने से धीरे धीरे जड़ता आ जाती है, इसलिए आगे जब अधिक मास्टरी न करना। तो महाराज जी इसका मीनिंग क्या है? ये तो हर एक में लागू होगा, कोई भी काम कहाँ करेंगे। हर एक में कहा, ये स्कूल में, स्कूल के टीचर के लिए है जो स्कूल में निरंकित रूप से रेगुलरली जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, हाँ उनके तो साथ है। नहीं, तुम्हारे साथ तो क्या नहीं, तुम्हारे 2-4 बच्चे हो गए तो बड़े हो गए वो, अब तुम फ्री हो, तुम्हारा भगवान में मन लगाओ। ऐसा संसारी लोगों के लिए थोड़ी है ये, सब नहीं संसारी लोगों के लिए थोड़ी है। नहीं, मेरा सवाल ये बच्चों के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा तो फ्री हो तुम भगवान के मन लगाने के लिए। नहीं, ये मास्टरी के लिए इन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों तक मास्टरी करने से बुद्धि बिगड़ जाती है। बहुत दिनों तक मास्टरी, यही तो बोल रहा हूँ। हाँ देखो, तो ये बहुत दिनों तक मास्टरी करना यानी 4 घंटे तक स्कूल में रहना। हाँ हाँ तो 4 घंटे तक स्कूल में बच्चों का वातावरण और उसका चिंतन का प्रभाव हुआ ना, जी जी जी, तो साधना में बाधा हुई कि नहीं हुई? हाँ बराबर। पर ये तो हाँ, ये इन्होंने मास्टरी के लिए कहा है, पर ये हर एक चीज के लिए लगेगा ना, हर कार्य हर एक चीज के लिए हर एक चीज के लिए लगे। दैट इज राइट। जय महाराज जी, जय। प्रणाम महाराज। महाराज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पेजेस 146 and 147. Due to lack of awareness and finances, we cannot afford to start our own business. So that's why we chosen for the jobs. So doing job is not good, as I felt after reading these pages. There is no hard and fast rule. इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। अगर तुम्हें स्कूल में ऐसा गया है, रामकृष्ण मिशन के द्वारा चलाई गई ऑर्गेनाइजेशन में आप टीचर बन जाओ, वहां पे अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ तो क्या नुकसान? ऐसा है कि कोई प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी जी ने किसी रेफरेंस से कांटेक्ट किया है, वो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस तो कोई समय सब लोग तो नहीं चला सकेंगे ना जी, उसमें कुछ जॉब तो करना ही पड़ेगा। 90-80% लोग तो जॉब करो, स्वामी जी उनको कह रहे हैं कि मतलब बिजनेस करो, तुम क्यों बनते हो, गुलाम बनते हो। लेकिन आप अपना कर सकते हो, अपना पैसा थोड़ा कमाने के लिए थोड़ा बहुत कर लिया और बाकी समय भगवान के चिंतन में लगाओ, प्रार्थना करो। जी महाराज। Maharaj, second question है page number 148. Real education is that which enables one to stand on one's own legs. Does it mean that Swamiji is talking about skill-based education? So if yes, then now it is introduced in the new educational policy. कौन सा एजुकेशन? New education policy 2020. उसमें महाराज अब schools में skill-based education start हो गई है। गुड, अच्छा ही तो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। महाराज स्वामी जी मैं यही पूछना चाह रही थी, स्वामी जी यही कह रहे हैं ना? हाँ वही कह रहे हैं। ठीक है। वो उस जमाने में 100 साल पहले की बात है, वो अपने ढंग से अब प्रारंभ हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी गुड। हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा वोकेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट की है और स्किल बेस्ड। अच्छा महाराज, थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, पेज 149. Well, you consider a man as educated if only he can pass some examinations and deliver good lectures. Yes, it is true. But what can be done then? Because it is mandatory for everything nowadays. No, that's all right. लेकिन वैल्यूज तो जीवन में डालना पड़ेगा ना। जी, वो महाराज वो भी है, न्यू एजुकेशन में भी है, मॉरल वैल्यूज एक अलग से सब्जेक्ट है आजकल स्कूल्स में। तो फिर क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा? मैं वही पूछना चाह रही थी कि ये जो आप कह रहे हैं इसमें लिखा था ना बुक बेस्ड एजुकेशन है, तो वो वैसे तो मैंडेटरी है ही है ना, वो तो हमें लेनी ही पड़ेगी। वो तो बच्चों को आज के जमाने में कोई संत तो बनेगा नहीं वो, लेकिन वो ही हैज टू गेट अप एंड बिकम गुड सिटीजन। तो उसके लिए वैल्यू एजुकेशन तो होना चाहिए, और तुमने कहा है कि गवर्नमेंट ने वैल्यू एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस किया है, तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। और ठाकुर ने तो इज गॉन टू द एक्सट्रीम, उन्होंने इंटेलेक्चुअल एजुकेशन को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया। वो दूसरी बात। ठीक है महाराज, थैंक यू। निवेदिता।
हाँ जी महाराज। पहला प्रश्न है महाराज, what happened to Swamiji after returning from Amarnath and Kheer Bhavani? How is that Shiva is in his head and he was indrawn? Page 132. ना तो उसमें क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तो स्वामी जी को जो हम लोग जैसे कि स्वामी जी वहां से आए और शिव उनके सिर मैंने सिर पे था, बहुत देर तक वो भाव रह जा रहा है, तो उसका वो जरा हमको एक्सप्लेन करिए। वो शिव जी ने ऊपर एक आसन बना दिया ना, शिव के सिर के ऊपर। शिव जी के ऊपर बाल तो नहीं थे, स्वामी जी के बाल तो स्वामी जी के नहीं थे। उसके ऊपर शिव जी आराम से जाकर आसन लगाकर बैठ गए। ये मतलब है क्या? हे भगवान महाराज, हम लोग तो मतलब जैसे तीर्थ स्थान में जाते हैं तो इमीडिएटली वो चला जाता है, मतलब उसका जो भाव जो रहता है ना वो तो बहुत देर तक नहीं रहता है। तो स्वामी जी का ऐसा ये हमारा दुर्भाग्य है। हम लोग इतने बहिर्मुखी हैं। 5 मिनट तीर्थ में गए तो 5 मिनट ध्यान रखता है, 5 मिनट मंदिर से निकले, विश्वनाथ मंदिर में गए, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया, 2 मिनट भाव रहा, बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। जो साधक है वो जाएगा एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और उसका भाव सारा दिन रहेगा उसको। सारा दिन नहीं, दिन पर दिन रहेगा। केदार घाट जाएगा, वहाँ ध्यान जब करेगा, उसका दूसरे दिन तक भाव रहेगा, कई दिनों तक रहेगा, कई का। अरे एक दिन तो रहे कम से कम। भगवान स्वामी जी, अकेले जाने से इफ यू गो अलोन टू एनी धाम देन बहुत ज्यादा टाइम तक फॉर डेज टुगेदर भाव रहता है। ये लो ठीक। तो ये जो भाव अपने व्यक्ति के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर है कि कितनी देर तक वो ध्यान भाव रहेगा। महाराज जी, मेरे ख्याल में निवेदिता जी शायद ये भी पूछ रहे हैं कि ये भाव को कैसे रखा जाए। दैट इज व्हाट ये तो बोला ना मैंने, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बिना नहीं होता। और मैं खाली ये पूछना चाहती थी, जैसे स्वामी जी को शिव का अवतार कहते हैं, शायद इसीलिए ठाकुर बोले ना उनका जैसे पता लग जाएगा कि उनका स्वरूप क्या है, फिर ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, इसके कारण ऐसा हुआ क्या, ये पूछ रही हूँ। अब वो दूसरा है, स्वामी जी तो बहुत ही स्पेशल है ना। हाँ। जनरल क्वेश्चन जो हुआ, अगर हम साधना करेंगे तो जहाँ पे जाएंगे वो भाव हमारे को लगेगा और वो कुछ ज्यादा समय तक रहेगा। स्वामी जी की बात छोड़ दो, स्वामी जी तो होता है उसका प्रश्न ही होता। तुम्हारा क्वेश्चन हुआ कि नहीं? दूसरा प्रश्न थोड़ा हुआ हमारा। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? नहीं, मैं पूछना चाहती थी स्वामी जी के बारे में, मतलब स्वामी जी का क्या ये है, क्यों ऐसा हो गया है? वो तो शिवावतार थे, ठाकुर के पास आने के पहले ही वो समाधि ध्यान जब रेगुलरली करते थे, इसलिए पूछना चाहती ठाकुर थी, की मतलब कृपा डिटेल से में उनको समाधि हो गई थी। समाधि उनके लिए स्वाभाविक थी। ऐसा व्यक्ति को नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये सोचो तो। अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग रोज सुबह शाम में तो ध्यान नहीं कर सकते, हमको क्या होगा? जी महाराज। दूसरा प्रश्न है, प्लीज टेल अस अबाउट श्राद्धा which we are doing in Grihastha ashram. Many people of our religion do not believe in Shraddha, and what happened to them? जैनिज्म में तो श्राद्ध को उठा अभी दिया आपने कहा, आपने कहा जैन समाज में तो नहीं करते श्राद्ध, तो कोई श्राद्ध सब उठा दिया। हाँ ठीक है। वो जब आदमी मर जाता तो है ना, सुनो जब मर जाता है ना, तो वो केवल 12-13 दिन तक वो लोग थोड़ा सा व्रत रखते हैं, यानी कोई ध्यान जब थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं और थोड़ा सा गरीबों को दान कर देते हैं और खत्म बस। तो ये उसके बाद में वो साल भर के बाद में फिर श्राद्ध करना है, ये कुछ भी नहीं करते। और ये अब जैन हिंदू धर्म में है कि ये डेमीगॉड्स है, भूत है, या जो मर गया है वो अगर श्राद्ध नहीं करोगे तो भूत बन जाएगा। अब ये सब भाई अपन नहीं। उसके बाद पिंडदान भी है इसी प्रकार का होता है।
हाँ, लेकिन हिंदुओं में महाराज जी यह संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, अगर वो कल को सोचेगा कि मैं नहीं करूंगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत मुश्किल होगा क्या बोला? महाराज। हाँ, श्राद्ध मान लो नहीं करे, समाज में रह रहे हैं, श्राद्ध नहीं करे तो सबकॉन्शियस माइंड भी अच्छा नहीं। अच्छा, वो श्राद्ध जब कितनी बार करना पड़ता है फिर तुम आप लोगों को? मतलब बेचैनी रह जाती है। है? हाँ? नहीं, श्राद्ध जैसे है क्या अपने महाराज? माता पिता का श्राद्ध करना है ना, हाँ, मर गए हैं तो आप उसको श्राद्ध एक बार कर दीजिए, खत्म हुई नमक। नहीं महाराज जी, नहीं, कंटिन्यूअस हर साल करना पड़ता है। उसके बाद Every मान year. लो गया में पिंड दान करो गया में। तो ये बढ़िया है, ये बनाया है तो तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा है। पंडों ने गया में बहुत का बढ़िया, जरूरत नहीं होता। पंडों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। हमारे जैन धर्म में तो कुछ नहीं है देवा दिलीप भाई। हाँ महाराज जी, हमारे वहाँ तो ये है कि श्राद्ध हर साल करना पड़ता है, हर साल खीर बनाते और खाते हैं पिता के नाम पे, दादा के नाम। हाँ। और महाराज महाराज इसमें एक ऐसा भी प्रचलन है कि जैसे अगर श्राद्ध नहीं करते तो फिर वो मनुष्य का उसकी जो पीढ़ी है उनको वेदनाएं पीड़ाएं होती है, यानी जो उसके पितृ है वो कष्ट देते, मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा भी है। जो जिनका श्राद्ध नहीं हुआ, यानी अपने दादा परदादा का अगर श्राद्ध नहीं करोगे तो उनकी मुक्ति नहीं होते, लटके रहते हैं। हाँ, यही बोल रहे हो ना? हाँ, ऐसा ही है महाराज। अब वो भाई हम नहीं जानते, ये जैनिज्म में तो नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है। उनके जो मर जाते हैं तो के लटके रहते हैं वो सारे जीवन। नहीं स्वामी जी, नहीं। जैसी भावना तैसी, जिसका वो भावना होगी वैसा होगा। जादृशी भावना, स्वामी जी। अच्छा, अब जब करना है तो करो, आप लोग करो, ये फालतू की बात है। हाँ, ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न थोड़ा मुश्किल का है। What is the significance of Shraddha before taking sannyasa? How it is different from Pindadan for the Shraddha of the Grihastha? ये आप बताइए। ऐसा है कि वो यानी हम ऐसा है कि संन्यास जब होता है उसके बाद में सन्यासी को ये कर्म कांड का अधिकार नहीं होता। सन्यासी जो हो जाता है ना, तो उसके बाद में ये जो कर्मकांड, गृहस्थों के कर्मकांड जो है ना, वो उनका अधिकार नहीं होता। तो इसलिए श्राद्ध को पहले कर लेते हैं, खत्म हुई बात। तुमने अपने पिता दादा परदादा के प्रति आपका जो ऋण था वो आपने चुका दिया और अब आप सन्यासी ले लो, बस खत्म हुई बात। आप सारे समाज के, आपके परिवार के, दादा परदादा के जितने भी ऋण है, जितनी जिम्मेदारी है, उनसे मुक्त होकर आप सन्यासी हो गए। वो तो ठीक है, पर खुद का भी श्राद्ध कर लेते हैं ना सन्यास के पहले। हमारा भी श्राद्ध, हमारा तो कोई होगा नहीं ना। हमारे पुत्र पौत्र तो कुछ नहीं होने वाले जो हमारा श्राद्ध करेंगे। हमारा भी श्राद्ध हो गया। अरे छोटे से एक पीठ उठा के डाल दिया और 2 भक्त बोल दिया, हो गया। ये इतना सब कितना क्यों करना? अपने मन सुनो, अपना मन तीव्रता से, एकाग्रता से भगवान का या इष्ट का अपना चिंतन करके, प्रभु मैं अपना श्राद्ध कर रहा हूँ, कुछ एक लेके कुछ पिंड देखो अग्नि में डाल दो, कुछ भक्तों को या संतों को कुछ खिला दो, खत्म। बस ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, व्हाई स्वामी जी इज टेलिंग we should able to survive the struggle for existence, otherwise the country and race will vanish. ये पेज 137। ये स्वामी जी ने उस समय बताया, लेकिन जब समय भारत की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। अच्छा, खाने को नहीं मिलता था, गरीब थे, जो पंडित थे, जो थे, उनकी भी हालत बहुत खराब थी। यानी हिंदू रेस जो है वो समाप्त होने जैसी बात है। इंडियन कल्चर वाज डाइंग, इसलिए उन्होंने कहा था। अब तो बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब यानी भारत बच गया है, तो भारत के साथ में हिंदू संस्कृति बच गई है, सब कुछ बच गया है और सब कुछ चल रहा है।
ठीक है। Now things अब have पांचवा changed प्रश्न है completely. उसके बाद है व्हाट इज आई, इज इट ईगो? जो बड़ा आई और छोटा आई है ना, तो बड़ा आई छोटा आई ईगो है और बड़ा आई आत्मा है ना महाराज? हाँ, ऐसा बोलो। हाँ। जो अहम ब्रह्मास्मि, जो आदमी इसमें प्रतिष्ठित हो गया है, वो जब बोलता है मैं, तब वो बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये बात, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं कौन है? मैं भी ब्रह्म ही है। मैं फिर मैं देह नहीं होता, मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होता। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न च प्राण संज्ञो, न मे पंचवायु, न वा सप्त धातु, न वा पंचकोशः, न वा आत्मानि पादम, न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये है ना, चिदानंद रूप शिवोहम, जानती हो ना? जी। तो वो इसका मतलब ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। और अभी जब मैं बोलता हूँ तब क्या माता है, मैंने बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ मेरे को आइडेंटिफाई किया है। जिसको मैं जीव कहता हूँ, उसके साथ में मैं करता हूँ। हाँ, अच्छा। जब हम बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाई, तो जीवात्मा हुआ, नहीं तो मैं ब्रह्म हूँ। वो स्मॉल हो गया, छोटा ईगो हो गया। ठीक है, ठीक है महाराज। अब लास्ट प्रश्न है, कैन एक मिनट, ईश्वर कोटि कैन कम बैक आफ्टर फ्रॉम द निर्विकल्प समाधि? अच्छा, दिलीप भाई क्या बोल रहे हैं, बोलो। महाराज जी, मेरा ये सवाल था इसके कंटिन्यूएशन में कि जीवात्मा परमानेंट रहेगी और ब्रह्म ज्ञान परमानेंट नहीं रहेगा क्या? जैसे अभी आपने ये बताया कि अरे जीवात्मा तो है, वो तो बदलता जाएगा। कुछ समय तक नहीं, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं क्या कहते माइंड पर्सनालिटी में हूँ, तो उस समय जीवात्मा होता हूँ, अदरवाइज मैं ब्रह्मात्मा हो सकता हूँ। हो सकता है, यानी ओरिजिनली स्वरूपतः वेदांत बोलता है कि हम ब्रह्म ही हैं। हमने अज्ञान के साथ में बॉडी, देह, मन के साथ में एकत्व बना के माया के द्वारा हम अपने आप को आई कह रहे हैं। मैं दिलीप हूँ, मैं ब्रह्मेश्वरानंद हूँ, ये कर रहा हूँ। ये माया के कारण, अज्ञान के कारण हो रहा है। माया अज्ञान हटा दो तो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, तो महाराज जी, मेरा ये सवाल था कि फॉर ए इंटरवल हम जीवात्मा रहते हैं और बाद में ब्रह्मा। अरे रहते, मैं अब बोलूं, मैं तुम जैसा अपने को समझोगे वैसा होगा। अच्छा जी, तुम अपने को समझोगे कि मैं दिलीप हूँ, तो मैं आप जीवात्मा रहेंगे, ओलेवर हैं जैसा समझेंगे। अच्छा, लेकिन वो समझेंगे कि मेरे को शरीर से क्या लेना दे। हाँ, तो मैं आत्मा हो, परमात्मा हो जाऊंगा। अच्छा, तो उसको निरंतर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी निरंतर। उसके बाद में अगर शरीर को कुछ होगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे मेरे को सिर दर्द हो रहा है। मुझे सिर दर्द नहीं हो रहा है, ये बॉडी को सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर को हो रहा है। महाराज जी, ये प्रैक्टिस करने पे भी नहीं होता है। वो ऐसे एक दिन में नहीं होता है, ऊंची बात है, कई जन्मों में लगता है। अरे रोज महाराज जी, पाँव इतना दुखता है, ऑपरेशन के बाद हम कोशिश करते हैं कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, पर दिमाग वहीं जाता है। हाँ, वो ठीक है, दिमाग जाने दो ना, दिमाग भी तो मिथ्या है। अच्छा, नहीं तो उस समय हमको भगवान, हमको ठाकुर नहीं दिखते हैं, वो अरे उस समय, क्योंकि आपने सारा जीवन तो संसार का चिंतन किया है, शरीर को मैं समझा है ना। हाँ, अभी ये 2-4 साल से थोड़ा सा जूम मीटिंग हो रही है, थोड़ा सा सुन रहे हैं, उससे हो जाएगा क्या? तो उसकी प्रैक्टिस कैसा करना पड़ेगी? अब यही तो करे, जैसे कर सको वैसा करो। सभ्य पूर्वक दिन रात वही चिंतन करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। दिन रात एक ही करो, बार बार। जी, मनोबुद्ध। जी महाराज जी, महाराज जी प्रणाम। नेक्स्ट, लास्ट महाराज, क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, कैन ईश्वर कोटि कम बैक फ्रॉम द निर्विकल्प समाधि? और जो ठाकुर कहते हैं ना 21 दिन में मृत्यु हो जाती है, वो किन के लिए? साधारण मनुष्य के लिए कहा गया, सामान्य साधक के लिए। हाँ, तो निर्विकल्प समाधि के बाद मर प्रणाम महाराज, हो गया। हाँ, वही
ओके, सतीश प्रणाम भी महाराज। प्रणाम महाराज। तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन के हैं। चलो डिस्कशन होगी महाराज? शुरू पूछो करो ना, महाराज। डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? डिस्कशन। राइट राइट। I have no birth, no death. I am the Atma, untouched by anything. Lose yourself completely in this idea. Maharaj, how can we have fearlessness and feeling that I am Atma as we are bound by the body and worldly shackles? ये अभी बात दिलीप भाई से बात किया जी हाँ जी हाँ। वो विचार करके देखिए कि बॉडी तो मैं नहीं हूं ना। तुमको यू आर सीइंग द बॉडी। इफ जी यू आर महाराज। सीइंग द बॉडी देन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग हो गए। तो राइट महाराज। ये विचार करो, दिन रात विचार करो कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। कंटिन्यूसली महाराज विचार करो। जब तक Listen, विचार हूँ तब तक ही थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद तो होता नहीं ना। जब तो तक वो तब विचार क्या करें, उसका कोई उपाय नहीं। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। इसीलिए और सर लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाते थे कि संसार के चक्कर में नहीं पड़े और निरंतर बैठे हुए ये विचार करें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तभी उसके बजाय देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। Maharaj, next question. Swamiji lays great emphasis on fearlessness and I am Atma. This Thakur used to lay emphasis on having the attitude of servant of God, Dasya Baba. तुम्हारे मोबाइल फोन कान मुंह के सामने रखो। राइट महाराज, स्वामी जी तो कहते थे fearlessness। अरे तुम्हारे मोबाइल जो है मुंह के सामने रखो, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सामने ही हमारा महाराज स्वामी जी कहते थे, वो कहते थे कि fearless, अपने कहो कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन ठाकुर जी कहते थे कि दास्य भाव रखो, मैं आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो हाउ डू वी रिकंसाइल दीज टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स? नो 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 नो। अगर तुमको ये भाव लेना है, सुनो, अगर तुमको ये भाव लेना है कि मैं आई एम ए चाइल्ड ऑफ द मदर, आई नो फियर, तो बस उसी भाव को लो। बस उसके बाद मैं ब्रह्म नहीं होता। हाँ नहीं होता महाराज। दोनों को मिलाओ नहीं। राइट राइट राइट। या फिर कहो मैं राम का दास हूँ, मैं हनुमान हूँ, मुझे क्या भय है। फिर उसके मैं यहाँ पे ब्रह्म को नहीं लाओ। राइट राइट राइट। डोंट मिक्स अप द भाव। हाँ जी माँ, ये बड़ी कंफ्यूजन कर देते हैं। राइट राइट महाराज। और इसलिए जो लोग एक भाव ले लेते हैं उसके बाद में वो दूसरे एक भाव की किताब भी नहीं पढ़ेंगे। जो दास भाव ले लिया है तो भगवान राम हनुमान जी का चिंतन करेंगे, वो फिर वेदांत की किताब नहीं पढ़ेंगे, दूर से रहेंगे वेदांतियों से। पर महाराज जैसे ठाकुर ने कहा था कि वेदांत ज्ञान को आंचल में बांध लो, वो तो करना पड़ेगा। आंचल में बांध दो। वो वेदांत ज्ञान, वो ये जो भी है वेदांत ज्ञान में यहाँ पर स्वामी जी ठाकुर ने तीनों कहे हैं। दास भाव भी कहा है, संतान भाव भी कहा है और अहम ब्रह्मास्मि। इन तीनों में से कोई एक भाव लेकर फिर संसार का काम करो। संसार को अलग किया है। जी जी जी। पहले एक किसी भाव में प्रतिष्ठित होकर संसार में कहो। जी यहाँ पे दो भाव को यानी अद्वैत वेदांत के भाव को और द्वैत भाव को मिलाने की बात नहीं है। राइट, नहीं ठीक ठीक महाराज। मैंने क्या समझा महाराज कि आंचल में बांध लो मतलब कि उसको समझ लो, लेकिन उसको प्रैक्टिस जो है अपना भाव करो। आंचल में बांधने का अर्थ है प्रतिष्ठित हो जाओ। जी महाराज। यानी यहाँ आंचल में बांधना तो प्रैक्टिस से भी ऊंची चीज है। जी महाराज। मैं भगवान का दास हूँ, इस भाव में प्रतिष्ठित होकर संसार के काम करो। राइट राइट महाराज राइट। तो ये इतना आसान नहीं है। महाराज मेरा इसी पे एक प्रश्न था, ये जो सतीश जी ने प्रश्न किया इसी पे एक प्रश्न था मेरा, कि कहीं पर आपके प्रवचन में या कहीं मैंने सुना कि हम ब्रह्मास्मि बोलते से इससे भक्ति की हानि होती है। वो अगर हमने नहीं बोलना चाहिए। देखो देखो देखो, हाँ मैं यही तो बोल रहा हूँ, दोनों में से कोई एक भाव ले लो।
जो तुमको ठीक लगे। अब भक्ति का भाव ले लिया, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर अद्वैत को मत लाओ। अगर अद्वैत को में लगे हुए हो तो अद्वैत को रखो, भक्ति को मत लाओ। नहीं, लेकिन महाराज जी अगर हम स्वामी जी को फॉलो कर रहे हैं, स्वामी जी बोलते हैं आई एम आत्मन, आई एम आत्मन, हम यही विचार करें और हम ठाकुर का भी, हमें जो गुरु ने मंत्र दिया उसका भी जप कर रहे हैं, ध्यान जप कर रहे हैं, तो दोनों साधना तो एक साथ ही हो रही है फिर। अरे देखो, ऐसा है, जब ठाकुर जी स्वामी आते थे, स्वामी जी आते थे ना, तो ठाकुर जब स्वामी जी से बातचीत करते थे तो अद्वैत वेदांत की बातचीत करते थे, उस समय सब दूसरे भक्तों को दूर भगा देते थे, चले जाओ तुम अलग से। यस, स्वामी जी को एकांत में जाके कहते थे कि हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो। तो ये दोनों भावों को मिलाना नहीं है। ठीक महाराज, स्वामी जी ठीक दूर, महाराज। ठाकुर दूर तक देख कर आते थे कि लोग तो नहीं सुन रहे हैं, मैं ठाकुर नरेंद्र को जो बात बोल रहा हूँ। ये दोनों भावों को मिलाना, मत मिलाओ। अगर भक्ति का महाराज हम भाव लोग मिले, कैसे करें? हम लोग तो वेदांत का सब पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, वो करते हैं, और जैसे अभी इन्होंने कहा एकदम बराबर है। फिर जब भी ध्यान करते हैं, हम भक्त भी है और ज्ञानी भी, ऐसा में भाव आता है। ऐसा है कि ये स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, डू बाय वन बाय मोर एंड ऑल ऑफ दीज एंड बी फ्री। राइट, तो राइट हमको महाराज। स्वामी जी 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 ने महाराज। इनको कंबाइन करने की छूट दे दी है। सबका जी महाराज। समन्वय। हाँ 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 मतलब ये हाँ है, जी मतलब ये है महाराज। कि मंदिर में जाओ जब हो तो पूजा करो, ठाकुर की पूजा करो, हाँ अपने को भक्त मत की पूजा जी करो, जी हाँ हाँ और अपने कमरे में रहे तो गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका प्रचार विचार करो। वो और जब करो। हाँ ये भी विचार करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं और- ये शरीर नहीं हूँ। जी, हाँ हाँ ऐसा हाँ, हम करने लोग से ऐसे ही ऐसा करते हैं। विरोध नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा जो भाव है कि मैं ठाकुर की संतान हूँ, ये भाव हाँ बल्कि प्रबल होगा। राइट, राइट महाराज। राइट। हाँ, बस देहात में बस यही हम लोग से सुनना था। हाँ देहात में बहुत कम होगा। जी 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 महाराज, जी जी महाराज जी जी, जी ठाकुर भी ज्ञान अब मिश्रित बराबर समझ में आ गया। ठाकुर जी भी ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात करते थे महाराज। स्वामी जी ने तो चारों को लाने में कोई दिक्कत नहीं थी। चारों को कॉम्बिनेशन करना। हाँ ठीक है महाराज। भाई चारों को मिला के चलना पड़ेगा महाराज। वो तो स्वामी जी बीच बीच में कहते थे, गिव इंजेक्शन ऑफ वेदांत। राइट, राइट। कई बार संसार जो है वो बहुत अधिक जगत सत्य प्रतीत होने लग जाता है, तो वेदांत का इंजेक्शन देना। राइट, राइट महाराज। और एक प्रीडोमिनेंट होगा चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। ये how the disciple having inspired by Swami Ji while being in his company and serving Swami Ji day and night chose to become a householder than a sannyasi. ना वो when स्वामी जी के पास में आया ना, he was already married and had children. Right, He right. came of Swami Ji at the age of 28 or 29. Right. उस समय तक ऑलरेडी वो गृहस्थ हो गया था, बबे बच्चे हो गए थे। Right. But he lived the life like of a sannyasi. Even if he was a professor, he lived the life of a sannyasi. क्या? Maharaj, even if he was a householder, but नहीं, वो he was a householder from the beginning. ऐसा नहीं। स्वामी जी के पास आने के पहले बाद में भी हाउस होल्डर थे। 10 साल शादी हो गया था मेरी जटा से। ठीक महाराज, ये जो उन्होंने कन्वर्जेशन जो नोट की है वो इंग्लिश में नोट की है या बाद में उन्होंने उसको किया है? और मेरे ख्याल से ओरिजिनली बंगाली में। राइट, ओरिजिनल बंगाली। जैसे किसी शॉर्ट हैंड राइटर की हो जैसे। अब वो तो ऐसा है कि रोज सुन लिया और कमरे में जाके लिख डाला। राइट। हमारे लास्ट तो आपने कहा था कि ये तो कमेंट है, नॉट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, स्वामी जी talks about empowering the lower caste for they are the backbone of economy. Swami say teach them history, geography, science, etc. But Swamiji did not talk about teaching them Sanskrit and religious texts. As a result, these castes have become empowered, but without religious and cultural moorings. And thus there is a widespread corruption in the society. अरे इंडिया में क्या चाहते हो तुम?
क्या चाहते हो इंडिया में टीच करना? और और क्या? हजारों तो से हरा जो रिलीजियस सेंटर्स है ना इंडिया में, हाँ इतना धर्म तो धर्म के सिवा कुछ है क्या इंडिया में? अब यार और कुछ विश्वनाथ नहीं मंदिर में, है। विश्वनाथ मंदिर में ऐसी भीड़ लगती है कि जा नहीं सकते आप। तो क्या है वो खाली रिचुअल। उसको But वो but Maharaj, our masters are not Sanskritized. Our नहीं masters नहीं have not been Sanskritized नहीं, in the संस्कृत इज in the नॉट way. संस्कृत। अरे हमको ही मैं कहा। तो उससे नहीं, संस्कृत नहीं, संस्कृत से नहीं होगा। संस्कृत Sanskritized means संस्कृत culture. संस्कृत 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 पढ़ने वाला व्यक्ति भी करप्ट हो सकता है। इट इज मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट दैट बुद्धि का किताब पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है। मॉरल एजुकेशन स्कूलों में देना चाहिए। और कुछ लोग करते हैं आजकल स्कूलों में कुछ कुछ करने का, कहानियां सुनाने का, मॉरल मॉरल क्लासेस होती हैं, इस प्रकार की क्लासेस होने लगे। वो कुछ बात नहीं है। इंडिया जो है वो ऐसे कोई बात नहीं है। वो याद रखिए, ये करप्शन वगैरह तो जो है हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहे। वो तो रहता है महाराज, पर ये जो वाइड स्प्रेड है इसका कारण तो कुछ यही है ना, जैसे अपने का मॉरल एजुकेशन नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि नहीं, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो शास्त्र है, उनकी नॉलेज नहीं है, मेरा ये कहना है। नहीं 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 नहीं, उसके कारण नहीं है। It has nothing to do that. मास्टर्स में और नहीं है, शास्त्र पढ़ने उस कैटेगरी में से पढ़ती तो है। गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा पुल्टा होगा। और यूं तो आपको देखो जूम मीटिंग में आपको मिलेगा, आप इंटरनेट में चले जाइए, हंड्रेड्स ऑफ रिलीजियस वो है कि नहीं, चैनल्स हैं कि नहीं। रामायण सुनोगे, महाभारत सुनोगे, और कौन सा ये साधु बाबा का सुनोगे, ये सुनोगे। इतना मॉरल एजुकेशन तो हो रहा है, और क्या चाहिए? रिलीजियस एजुकेशन हो रहा है। निवेदिता स्कूल जहाँ जहाँ भी है वहाँ मॉरल एजुकेशन है हमारे। अरे सब जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सभी स्कूल में होता है। नहीं, इवन ये वैष्णव धर्म और जैन धर्म के अंदर अलग क्लासेस लगती है छोटे बच्चों के लिए। अब बोलो, बहुत है कि उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। महाराज हमारा कंट्री इतना बड़ा है, 140 बिलियन पॉपुलेशन है। 140 बिलियन की पॉपुलेशन है, 140 बिलियन पॉपुलेशन, 140 करोड़ की पॉपुलेशन हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि कुछ पॉकेट्स में होता है, एज थ्रू आउट मासेस में नहीं होता। नहीं और तो आप क्या करना क्या चाहते हो? 150 करोड़ की गवर्नमेंट देख रही है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल खोलेगी, और स्कूल खोलेगी तो उसमें मॉरल एजुकेशन की बात अभी बात कही ना। बच्चों को कहानी के साथ मॉरल एजुकेशन की कहानी बोलते हैं ना। राइट। इंटरनेट तो एक ऐसी चीज है महाराज, इसके तो दोनों बेनिफिट है ना। इसमें से रिलीजियस लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, दूसरी चीजें भी मिलेंगी। अब क्या उसकी अब ये तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये तो पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चों को क्या देना। अच्छा चलो, भुवन मित्तल। प्रणाम महाराज, प्रणाम। भुवन मित्तल। हाँ जी महाराज जी। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन है पेज 125 about Amarnath cave darshan. Swamiji also took Sister Nivedita to the Amarnath darshan, and she felt upset about Swamiji not blessing her with a spiritual experience while there. Did Swamiji offer Sister Nivedita to Shivji at Amarnath? From where have you got this? It is not in the matter sense. अच्छा, नहीं ऐसा नहीं करो। रेफरेंस के बिना आप कैसे देखेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है। What is this? निवेदिता की जीवनी में है। वो ऐसा तो संभव नहीं होगा ना। यानी वो उन्होंने निवेदिता को ठाकुर को ऑफर किया, उनको वहां पे निवेदिता को वहां पे उनको ऑफर किया, नहीं किया, क्या किया, ये स्पिरिचुअल है उसको वो कैसे होगा? स्वामी जी ने जब मार्गरेट नोबल को निवेदिता बनाया, तब उन्होंने उनको ब्लेसिंग करके ठाकुर को बस खत्म। वो दीक्षा दिया था जब भी। दीक्षा दिया था, उसका नाम बदल दिया तो निवेदिता को बदल
मार्गरेट नोबल को निवेदिता बन गया और कहा कि नाउ यू आर डेडिकेटेड टू गॉड। वो तो अल्मोड़ा में हुआ था ना महाराज जी? अब जो भी हो भाई, नहीं पता नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पर हुआ था अपना महाराज, वो हमारे बेलूर मठ के पास जो है वो वहीं पर हुआ, नीलांबर बाबू के मकान में, वहीं अब पे जो भी दीक्षा हो, दिया था या उनको। जो भी हो, ये यहाँ पे कम से कम इट हैज नथिंग टू डू विद योर अमरनाथ। सेकंड क्वेश्चन, क्या हुआ? कहाँ वो गई? क्या है? इज फॉरेन फ्रॉम कनेक्टिंग फ्रॉम फॉरेन, तो डैलस से या कहाँ से कनेक्ट कर रही है तो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बोलो महाराज। लाला बद्री शाह के आगे जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ब्लेस किया था ना निवेदिता को, शायद वहां पे भी। हाँ, खाली ब्लेस किया था, पर निवेदिता नाम जो दीक्षा दिया था वो नीलांबर बाबू के मकान में दिया था, अब भाई अब वहीं मालूम पर। नहीं। तो ये वो उसका इंटरनेट कनेक्शन शायद खत्म, बंद हो गया है क्या? दिलीप भाई आई। तो क्या करें, बंद करें? जी महाराज। Swami ji, my questions. Yes, come on. No, you have given me the answer already, but still I'll just read out the questions. Okay. Section 4, page 133 to 134. Swamiji says, divine voices are actually heard, just as you and I are talking. My question was, can we too hear divine voices? How to know that it is divine voice and not one's own chattering mind or imagination? No, Baba, but who will look after your mother if you will listen to Don't worry. Yes, she needs more attention now. Yes, don't go for divine. Section 5. He is your God. Page 137, fourth para. Swamiji says, by degrees the heart has to be strengthened. How to strengthen the heart by degrees? You have said, sadhana. ऐसा है कि जो मॉरल वैल्यूज हो स्ट्रिक्टली उसको प्रैक्टिस करना। सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये डिस्कस करते हैं। कुछ मॉरल वैल्यूज बना लिए और उसको जीवन में स्थिरता दे। डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करने से अभी बिकम स्ट्रॉन्ग। Yes, Swamiji, that is very correct. Section 5, page 140, last line. Swamiji says, try to manifest this Atman. The means to try are sadhana, japa, dhyana. A still mind is a necessity, but stilling the mind is difficult. Kindly explain how to still the mind so that the Atman. Only practice by practice you can still the mind. Yes, Abhyas Yoga. अभ्यास, वैराग्य, ध्यान, चित्त वृत्ति निरोध करना है ना योगा। Yes, वैराग्य के द्वारा ही मन कंट्रोल होता है। Swamiji, whenever we get a little time during the day, whatever time, 2-3 times we get when nobody disturbs us, can one sit still and allow them? Not only you must do it, not only question, it is you must do it. Okay, Swamiji. It is not morning and evening, 3-4 times in the day, wherever you got, you must do it. It is not a question of asking permission. It is a command. Thank you, Swamiji. Command you have to follow. Correct. Because I have been trying to do that. No. अच्छा, हाँ, ठीक है. अच्छा, thank you. Thank you. Lots of love. Right. Page 143 to 144, Swamiji answers the disciples' question and says that Atman cannot be known through the mind and that one has to go beyond the mind. This paragraph I have not understood actually very clearly. We cannot understand unless we go beyond mind. By mind it cannot be understood. It cannot understand with this mind. Right, Swami?
by sadhana we will go to get a state by which we will go beyond mind. That is the only Okay, Swami. Thank you, Swami. Thank you very much. Okay, okay. क्या वो आई क्या? One. हाँ महाराज. Yeah. So मेरा question है, since seeing holy pigeons can at Amarnath can fulfill any desire one has, how can we only desire God? क्या है? Means desire है ना? Your question is for desire. Yes. How can we not have any worldly desires? No, you desire God. Yes. ठाकुर कहते हैं ना, pray for God. Have a desire to have vision of God. Intensify your desire intensely. You will find that your desire for the world will go away. Higher desire करोगे तो lower desire धीरे धीरे कम हो जाएंगे. ऑटोमेटिक खत्म चले जाएंगे. ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. हाँ जी. चलो हाँ. तीसरा क्वेश्चन है, स्वामी जी says, महाराज हम लोगों ने भी पिजियन देखा था अमरनाथ में. अच्छा चलो अभी दूसरा क्वेश्चन चल रहा है. स्वामी जी, ठीक है. Mother wills, so it will be. When we try to do Shiv Gyaner Jeev Seva, still we care about successful work outcome, even if that outcome is offered to God. Instead, so how can we? No, your question is Shiv Gyaner Jeev Seva. Yes. So what is the question? वो तो हो गया, ऑफर हो गया. अगर हम फिर भी चाहते हैं कि हमारा आउटकम फेवरेबल आए, तो लेकिन चाहे वो भगवान को ऑफर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आउटकम फेवरेबल आए, तो क्या ये ठीक एटीट्यूड है कि we have to try to get to as mother wills? हे भगवान, हम तो यहाँ मेडिकल काम करते हैं ना, हॉस्पिटल में इतने साल हमने काम किया, तो 100% कंसंट्रेशन लगा के किया कि पेशेंट अच्छा हो जावे. ये शिव ज्ञान से जीव सेवा के रूप में ही होता है ना, रामकृष्ण मिशन में सेवा. जी. तो अगर शिव ज्ञान से जीव सेवा होगा तो 100% कंसंट्रेशन के द्वारा जिस प्रकार पूजा करते हैं तो पूरे कंसंट्रेशन से करते हैं, उसी प्रकार से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, 100% कंसंट्रेशन से करते हैं, यह सोचकर कि शिव ज्ञान से जीव सेवा हो रही है. खत्म हुई बात. इज दैट आंसर क्वेश्चन? हाँ जी. नाउ सेकंड योर क्वेश्चन इज मदर्स विल, isn't it? Your question is this also. हाँ so जी. these are two different things. Miss, don't mix up them. जब शिव ज्ञान से जीव सेवा कर रहे हो तो मदर विल का क्वेश्चन नहीं आता. Why are you mixing the two things? अच्छा जी. वहाँ पूरा मन लगा के करने का. जब हम मदर्स विल करेंगे तो फिर दूसरी चीज आ जाएगी. यहाँ शिव ज्ञान से जीव सेवा नहीं. अच्छा जी, ठीक है जी, समझ गई. वो बहुत हाई एटीट्यूड है, तो हमारे लिए शिव ज्ञान जीव सेवा ज्यादा ठीक है. महाराज जी, जो भी हो, अगर मदर से विल के बारे करोगे तो शिव ज्ञान से जीव सेवा मत लाओ. मैं माँ की कृपा से हो रहा है, माँ करा रही है, माँ की इच्छा से हो रहा है, बस ये आइडिया को पूरा पकड़ो. कोई भी एक आइडियल अपने जीवन में ले लो और उसको पकड़े रखो. तो हम तो यहाँ पे कर्म करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि मदर विल है, हम पूरी इच्छा से कर रहे हैं, ठाकुर का काम कर रहे हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा कर रहे हैं, ईगो से नहीं कर रहे हैं. हाँ जी. महाराज जी, ये जो आप पेशेंट देखने की बात कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में या कोई, तो इसमें शिव ज्ञान से जीव सेवा भाव तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा वो भाव सारा दिन रहता है कि नहीं, ये तो कहना मुश्किल है. तो उसमें क्या करना चाहिए कि एंड ऑफ द डे? ये सभी साधनाओं में यही होता है. सभी साधनाएं के सारा दिन कर पाते हैं? हाँ, वो कोई सभी साधनाएं नहीं. वो हो जाए तो आप तो सिद्ध ही हो जाओ. शिव ज्ञान से जीव सेवा 100% हो गए तो एक पेशेंट को ठीक शिव देख लिया तो तुम सिद्ध हो गए. जी जी जी. ये तो सारे जीवन की साधना. जी महाराज. महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि बिना मदर्स विल कुछ काम ही नहीं होता है. शिव ज्ञान जीव सेवा करना है तो यदि मदर्स की विल होगी तो ही हम कर सकते हैं. क्या कहा?
मनस्थिति। मदर्स की विल ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ये हमारी सोच है। शिव ज्ञान जीव सेवा भी यदि हमें करना है तो माँ चाहे तो ये हमसे करवाएगी। अरे आप माँ की चाह जानते हैं क्या? ये बकवास है। माँ की चाह, माँ कर रही है, माँ कर रही है, ये सोच रहे हैं। एक माँ दिन की भी चाह एक हमारी दिन चाह भी है। तो ये अनुभव नहीं करते हैं कि माँ करा रही हैं। जब करा रही हैं तो हाँ, ठाकुर को लगेगा, बराबर। ठाकुर जैसा होगा। नहीं, यदि ये हम ये ये भाव केवल केवल एक सिद्धांत है, माँ करा रही कहने है। की बात है। उसी प्रकार एक सिद्धांत है शिव ज्ञान से जीव सेवा। इसलिए जी, मैं कह रहा हूँ कि शिव दोनों सिद्धांतों को बराबर। मत मिलाओ। ओके, राइट महाराज जी। जी साथ में महाराज जी, शिव ज्ञान जीव सेवा करने के बाद एंड ऑफ द डे अगर कोई गलती हो गई है काम में, तो हम क्या क्षमा याचना का भाव भी रख सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो देखो ऐसा है कि वो तो ठीक है, वो माँ से प्रार्थना करो, हाँ, ऐसा कर हाँ, सकते हो। सुबह सुबह प्रार्थना करो, प्रभु माँ मैं जा रहा हूँ। देखो कंबाइन किया जा सकता है ये भावों को। हाँ, मैं सेवक हाँ, आज ये जा रहा हूँ सेवा हाँ, करने हाँ। के लिए, माँ ये ठीक ठीक भाव से सेवा हो सके तो कर दो, कर दो। और एंड ऑफ द डे फिर क्षमा याचना का वापस भाव भी वापस रख समझ सकता हूँ। वापस समझ कर। ठीक है महाराज। हाँ। हाँ जी। महाराज एक क्वेश्चन है यहाँ, अगर हम पूरा मन लगा के कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो वो संतोष जब होता है तब तो हम बोलते हैं ना कि ये माँ की इच्छा नहीं है प्रभु इसीलिए नहीं हुआ। प्रार्थना या करोगे, प्रभु प्रभु से प्रार्थना करोगे मैं नहीं कर पाई, अच्छा माँ को हाँ, क्यों दोष देते हो? नहीं माँ, अच्छा 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 दोष, अच्छा अच्छा वो मैं, हाँ हाँ वो, यानी हम लोगों का जो माँ की इच्छा के ऊपर भाव है ना, ये बहुत सुपरफिशियल होता है। जी 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 जी। हम अपनी इच्छा हाँ, से सब करते हैं और कहते हैं कि क्या करें, नहीं कर पाए, माँ की इच्छा करें, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो संतोष के लिए प्रार्थना करना है कि मैं नहीं कर पाई। ट्राई कि भाई नेक्स्ट या टाइम कल मैं करूंगी, अच्छी तरह करूंगी, कोशिश। अच्छा अच्छा ठीक ठीक महाराज। सो फोर्थ क्वेश्चन है, जो स्वामी जी ने अपनी रिलेटिव के लिए प्रे किया था पिलग्रिमेज में टू रिलीज द स्पिरिट, तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रेइंग एट पिलग्रिमेज इज मोर फ्रूटफुल देन प्रेइंग एट होम? ऐसा तो मानते हैं, पिलग्रिमेज में तो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर एट होम से ज्यादा होता है, तो वहां पे जो भी कुछ करोगे वो ज्यादा होगा, हो सकता है, प्रोबेबली यस। अच्छा, हाँ जी। सो पांचवा क्वेश्चन है, स्वामी जी's compositions like a Chandala Pratihataram and Om Hrim Rhythm are spirituality. How can we live up to them and make them our own? क्या है अगेन, क्या क्वेश्चन है स्वामी जी जो से? ये compositions है महाराज स्वामी जी की, ओम ह्रीम रितम और आचांडला प्रतिहतर्या, तो ये दोनों जेम्स इन स्पिरिचुअलिटी हैं, तो इनको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं? अगर जो भी बात है उसको मेडिटेट करो, उसको जीवन में जो भी प्रैक्टिस हो, रोज देखो पढ़ो। मेडिटेट, ये प्रैक्टिस का यही प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल whatever you need, you understand well, find out what is practical in this, and third step is that you put it into practice. और उसके लिए रेगुलरली एवरी डे यू हैव टू रीड, यू थिंक अबाउट इट एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस। ये तो सिंपल प्रिंसिपल है, इसमें हाउ का प्रश्न नहीं हो। ठीक। महाराज जो आप प्रैक्टिस का बोलते हैं, प्रैक्टिस के बारे में आप जो बोलते हैं, तो प्रैक्टिस में कुछ दिन तो प्रैक्टिस होती है महाराज, बाद में मन नहीं लगता है, अभ्यास करने की इच्छा ही नहीं होती है। जो नैरेंद्र के बारे में आप बोलते हैं, वो तुरानंद जी के पत्र में भी आपने पहले ओपनिंग प्रवचन में बोला था कि नैरेंद्र सत्कार सेवित होना चाहिए, तो ये भाव रहता नहीं है। 8-10 दिन 15 दिन महीना हो गया कि वो भाव बढ़ जाता है सब। ऐसा है, ये कारण ये है करना कि चाहिए। हम कंटिन्यूअसली सांसारिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसलिए वो भाव अधिक समय तक नहीं रहता पाता। हमारे संस्कार जो हैं वो सांसारिक संस्कार बहुत गहरे हैं, इसलिए आध्यात्मिक संस्कार कंटिन्यूअसली बनने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए बीच बीच में बोलते हैं कि एक महीने आप किसी आश्रम में जाकर रहो, एकांत में जाके रहो, संस्कार को गहरा बनाओ, फिर उसके बाद में रहो, नहीं तो वो परमानेंटली होगा। ठीक है, ठीक है महाराज। अच्छा। स्वामी जी
ने कहा है कि श्री रामकृष्ण जी ने कहा है कि मनमुख को एक करो, तो ये कैसे करना चाहिए? क्या कम बोलने से सहायता? कम बोलना बहुत जरूरी है। वो स्पीच मौन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है साधना के लिए। तो फालतू बातें बोलने के बदले मौन रहना वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा। और उसके बाद जो भी बोलो वो सावधानी से बोलो, ठीक? हाँ जी। मन फिर में विचार भी कम आने चाहिए महाराज, मन में विचार भी कम आने, फिर तो मन में विचार भी पहले कम आने सुनो चाहिए। सुनो, स्पीच की बात, पहले स्पीच को कंट्रोल करो, मन की बात बाद में होगी। वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, पहले स्पीच तो कंट्रोल करो। राइट। हाँ। So question 7. Why did Swamiji felt like dying when he had an asthma attack? He was a Param Yogi and would knowingly enter Samadhi when his work was done. तो क्या हुआ? और तो you could have said that उनको अस्थमा हुआ तो उन्होंने अपनी योगिक पावर से अस्थमा को क्यों ठीक नहीं कर दिया, ये बोल रहे हो क्या? नहीं जी नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि उनको जब अस्थमा का अटैक हुआ तो उनको उनके मरने की इच्छा क्यों हुई उस समय? नहीं, उनको लग रहा था कि इतना कष्ट भोगने के बदले मर जाना अच्छा है। दैट इज सिंपल थिंग, जस्ट सिंपल थिंग। अरे भाई कितना कष्ट भोग रहा हूँ, इससे मर जाना अच्छा। और उसके बाद में एक्चुअली व्हेन जो उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अपनी इच्छा से डेथ को एक्सेप्ट कर लिया ना। अच्छा जी। But what is your, why are you asking this question? मैं इसीलिए पूछ उसमें तो उनका ये भाव था कि अगर मृत्यु आ जा रही है तो आ रही है, शरीर को आ रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। वो तो ये कहना चाहते हैं। नहीं उसको पूछे तो क्या पूछा? मैं ये सोच रही थी कि लाइक उन्होंने मरना क्यों चाहा, क्यों उनको इतनी पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि वो तो परम योगी है, तो उनको ये चीजें फील होनी नहीं चाहिए। तो परम योगी हो तो क्या उनको फील नहीं होगा? अच्छा ठीक है, जब वो मन को भी होता है, शरीर नहीं होती में नहीं होंगे तब फील ही होगा। यानी अगर योगी होंगे क्या हमेशा कंटिन्यूअसली योग में बने रहते हैं क्या? खाना पीना नहीं करेंगे क्या फिर? और क्या? तो सब कुछ होता है लोगों को। और जब इच्छा होगी अपना योगिक पावर से अपना शरीर को त्याग देंगे। तो कंटिन्यूअसली योग का अभ्यास थोड़ी करते रहते हैं दिन भर। समझ आ गई, अब महाराज समझ आ गया, आपने समझा दिया अच्छे से। मशीनरी खराब होगी, उसको त्याग करना और मशीनरी की तरह। हाँ जी। और what should we do if we have such a near death experience? Don't worry about death right now. हाँ जी। सहज करो सहज। महाराज जी, ठाकुर जी को भी कैंसर की वजह से बीच बीच में थोड़ा पीड़ा का अनुभव तो होता ही होगा, जब गले में उनको प्रॉब्लम था। बहुत अनुभव, बहुत ठाकुर का नहीं, ठाकुर का तो महाराज वो सूर्यानंद जी बोल रहे हैं ना, बड़े आनंद में दिख रहा है। ठाकुर जी को ऊपरी था। देखो देखो सुनो, पीड़ा तो बीच बीच में होता ही होगा, शरीर में जब वापस आ जाता। सुनो जब यू नो कुछ नहीं होता। तो ये योगी लोग जो है अपने शरीर को, देखो 3 लेवल हैं। एक तो ये है कि मैं ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो फिर शरीर में कुछ भी हो मुझे नहीं होता। निवेदिता सुन रही? तो बराबर, बिल्कुल। सुनो एक लेवल ये है कि ये एक आत्मा में आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो मुझे नहीं, ये आत्मा को आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध। दूसरा लेवल है शरीर में हो रहा है, मैं योग के प्रैक्टिस से अपने मन को उससे हटा रहा। जी ठीक से समझे ना? तब श्री रामकृष्ण तो दोनों में प्रतिष्ठित थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि शरीर में दर्द हो रहा है लेकिन मुझे नहीं दर्द हो रहा। और ऐसे अद्वैत वेदांत में पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं लोग। शरीर में दर्द होता है लेकिन जानते हैं कि मुझे नहीं हो रहा।
और ठाकुर में ये भी अवस्थिति थी कि वो अपनी समाधि में चले जाते थे, शरीर को छोड़ देते। हुआ स्वामी जी हम लोग कैसे लास्ट वाला इसे नहीं समझ में प्रैक्टिस आया कर महाराज, सकते लास्ट हैं? वाला फिर से बोलिए। वो ऐसा है कि लेवल जो है ना, एक लेवल है कि अपने को जानना है कि मैं आत्मा हूँ, देह मन नहीं हूँ, मुझे शरीर में हाँ वो बीमारी हो नहीं गया। हो सकती, हाँ। तो मुझे शरीर नहीं होता। दूसरा ये है कि मैं ठीक है। अपने योगिक पावर से शरीर में बीमारी हो उससे मन को हटा लूं। तो ठाकुर में ठीक है। ये दोनों ठाकुर में दोनों था। वे जानते थे कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये तो मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप। और दूसरा ये है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने मन को हटा भी सकते। नहीं तो जो ज्ञानी होता है, योगी नहीं होता है, वो शरीर में कष्ट होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो जानता है कि मुझे नहीं हो रहा है, ये शरीर को। तभी स्वामी जी एक जो डायरेक्ट डिसाइपल थे ना, तो उनका कोई ऑपरेशन होना था, तो फर्स्ट उनको बहुत ज्यादा पेन हुआ क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के किया था, शायद से हरि महाराज जी का ही था। सूर्यानंद। हाँ जी। तो फिर उन्होंने जब कहा कि पहले मुझे बता दो ताकि आई कैन गो इनटू दैट स्टेट कि जहाँ पे मुझे बॉडी की सेंसेशंस फील नहीं होंगी। तो वही तो किया था, मन को जैसे हटा लिया कि वो अपने मन का योग के पावर से अपने मन को उन्होंने शरीर से हटा। ठीक है। हाँ जी। जी अच्छा जी हो गया। और कोई बचा तो नहीं है? जी संजय, हाँ जी। संजय बंद करें। प्रणाम महाराज, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। नमस्कार नमस्कार। महाराज प्रणाम मंत्र महाराज। महाराज जूम मीटिंग से सबको बहुत महाराज प्रणाम मंत्र। ठीक है, फायदा हो रहा है पीयूष जी है क्या? महाराज। जूम मीटिंग को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, वेरी गुड। पीयूष जी प्रणाम महाराज। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्र, शांति मंत्र। ओम शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। लेकिन मुझे